All right, boys. So today we are going to discuss about food and digestion and about the paper, which is on Monday and Tuesday. Uh, as far as the paper is concerned, it is there are going to be 10 MCQs. All right, multiple choice questions, and each MCQ is going to be of 0.5 marks, and then there will be some fill in the blanks, there will be some true and false, and you have to correct the statement, and then there will be a diagram which you are supposed to label. All right, uh, you are supposed to memorize two diagrams. All right, in fact four diagrams. uh, One is of digestive system, all right, and the other one is of structure of teeth, all right, and you are supposed to also memorize about types of teeth in your mouth, all right, and then the diagram of refraction, the diagram of reflection. All right, in reflection, the diagram of simple reflection and reflection in plane mirror. You are supposed to memorize both. All right. Now, and all the notes, just it's even if you study only from the notes which I made you write in the class, then you're good to go with your paper. All right, otherwise you can go through once from your book, you can read it once. All right, yeah, if you read it once then it will be better. Okay, so now about food and digestion, these are the notes which I was talking about, that you are supposed to study from these notes. All right. There were a few questions which I added in the paper previously, and then I thought that they will be very complicated for you, so I have removed those questions. So I hope that now it is going to be it's a fair paper, a conceptual paper, and if you have read each and everything which I have taught in class, whether online class or whether face to face class, then I don't think that you will find any difficulty. अब एक चीज और यहाँ पे मैं ऐड कर दूं that you are supposed to do two things, memorize in two ways. One, each question which is coming up in your mind, find a reason to that. All right, digestion happens in your body. Why? ठीक है, हर चीज का, हर सवाल का एक रीजन आपके पास होना चाहिए. दूसरी चीज पेपर के रिस्पेक्टिव से ये है कि हर चीज का एक तो आपके पास रीजन होना चाहिए, दूसरी चीज जो आपके पास उसकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए उसकी एग्जाम्पल्स. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ, आपने ये सारा पढ़ा हुआ है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, ठीक है, उसके बाद 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, व्हाई आवर बॉडी नीड्स इट, what is the kind of diet which is considered healthy to maintain good health of a person, that is balanced diet. All right, and then what is a nutrient, the definition of nutrient. Definitions will, they can come in multiple choice questions or in fill in the blanks, but exactly definition लिखना नहीं आता होता यूजुअली. ठीक है, तो इसको आप फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव टाइप की वे में मेमोराइज कर लें या याद कर लें, वैसे आप समझा हुआ होना चाहिए सारी चीजें. नाउ व्हाट इज अ न्यूट्रिएंट? दीज आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग
and they give us energy and all of these things. They include carbohydrates, proteins, fats, lipids. Lipids fats को ही कहते हैं, ठीक है? Vitamins, minerals, water, and etc. All right, now types of nutrients. There are two types of nutrients: macronutrients, micronutrients. Macronutrients are needed in large quantities in your body. Micronutrients are needed in small quantities. Macronutrients include carbohydrates, proteins and fats. Micronutrients include vitamin and minerals. अब इसमें विटामिन और मिनरल के साथ साथ आप लोगों ने दो चीजें और याद करनी है. एक तो ये टेबल, I'll show you the table. ये वाला, this one. This is the deficiency table of all the vitamins and minerals. All right. ये टेबल आपने याद करना है. सबको आई होप नजर आ रहा है, ठीक है? अब इस यस मैम। तरीके से टेबल में मैच द मैम कॉलम आपने जो आएगा. नोट्स में डिटेल दी थी मैम, वो तो मैंने सारी लिखी हुई है मैम, वो टेबल याद करने की जरूरत ही नहीं है मैम। वो व्हाट इज इट, सिम्टम और ट्रीटमेंट सारा लिखा हुआ है उसमें। नहीं, लेकिन इसमें जैसे अब इसमें विटामिन बी का लिखा हुआ है दैट इट इज बेरी बेरी. अब बेरी बेरी आई थिंक आपको मैंने लिखवाई भी नहीं है. इसी तरह मैम आयोडीन लिखवाया की, हुआ है बेरी बेरी का। बेरी बेरी लिखवाया हुआ तो अच्छी बात है. मैम मैंने लिखा मैम हुआ है नोट्स में। आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर होता है, ठीक है? दिस इज अ डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज. अच्छा, इनके अलावा एक डिजीज और है विच इज कैशवायरकर, जो होती है ज्यादा एक्सेस, ठीक है? अगर आप उसकी एक्सेस, प्रोटीन्स की एक्सेस करने आपकी बॉडी में, अगर प्रोटीन्स की एक्सेस हो मैम जाए. मैम जी. इज देयर विटामिन जी? नो. मैम in the notes there was a question that is the which of the vitamin are correct in this, that there was vitamin G in all of them. नो, देर इज नो विटामिन जी. हाँ, इसके अलावा एक और विटामिन है विच इज विटामिन के. इनमें नहीं लिखा हुआ, बट वो भी आपने याद करना है. विटामिन के, आई जस्ट राइट दैट डाउन. विटामिन K. Now, vitamin K leads to a deficiency which is known as मैम वो फोर excess एसेंशियल वाइटामिन कौन से हैं? loss of the. मैम फोर एसेंशियल वाइटामिन कौन से हैं? मैं बताती हूँ. और प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग, ठीक है? विटामिन के होता है और विटामिन के से एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड होता है या प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग होती है, ठीक है? मतलब अगर ब्लीडिंग हो रही हो तो वो रुकती नहीं है अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो बॉडी में. मैं आपके सब क्वेश्चंस का आंसर दूंगी वन बाय वन. फर्स्ट लेट मी कंप्लीट, ठीक है? अब ये जो चीजें आपने याद करनी है वो मैं आपको बता रही हूँ. इसके बाद मैक्रोज एंड माइक्रोज क्या होते हैं, कितनी क्वांटिटीज में रिक्वायर्ड होते हैं, ये याद करना है आपने. इसके अलावा आप लोगों ने ये याद करना है ये वाला जो डेफिशिएंसी डिजीजेस का टेबल है, ठीक है? और इसके अलावा विटामिन के वाली चीज जो मैंने आपको बता दी है कि विटामिन के होता है एंड विटामिन के लीड्स टू प्रोलॉन्ग. मैम वो एक मिनट दोबारा दिखाना. क्या है ये टेबल? नो मैम, वाइटामिन वाला. दिस वन? नो मैम, वाइटामिन के वाला. मैम मुझे तो वो स्क्रीन ही मैंने नहीं आपको आपकी शो हो रही. मैसेज किया है ना. मैम मुझे आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही. आप लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन हो, ये लिखा हुआ है मैसेजेस में. ओके मैम, विटामिन देख. के वाला. यस. विटामिन के लीड्स टू एक्सेस और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग. ऑलराइट देन, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. अच्छा हाँ, अब इसमें न्यूट्रिएंट्स ना एज इट इज नहीं आते पेपर में. पेपर में न्यूट्रिएंट्स इस तरीके से आ जाते हैं, मतलब जैसे एमसीक्यूज में आ गए कि जी फॉर एग्जांपल
मीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच न्यूट्रिएंट? ठीक है, इसी तरह ग्रेन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच न्यूट्रिएंट? इसी तरह ऑयल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच न्यूट्रिएंट? ऑलराइट, एक तो ये चीज। दूसरी चीज ये कि कौन सा न्यूट्रिएंट ब्रेक होके क्या चीज बनता है। ठीक है, जैसे कि अब जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, व्हेन यू ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। किस चीज में कन्वर्ट होते हैं ये? ग्लूकोज में। ग्लूकोज। ग्लूकोज इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। मैंने यस आपको टू मैम। टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स बताए थे, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स which are easily digested in your bodies, ठीक है, एंड ये हार्मफुल होते हैं, दीज आर बैड कार्ब्स। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल में आती है, दो एग्जाम्पल्स हैं इसकी, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। मैं मेंशन कर देती हूँ नेम। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जाम्पल्स हैं ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अब ये चीजें आपने याद मैम ये करनी तो है, कॉपी पे इसलिए भी बता क्वेश्चन रही किया हूँ मैं। हुआ है ग्लूकोज अगर वाला। ये याद नहीं करनी होती तो मैं ना बताती। ऑलराइट जी। ये मैंने मैम ग्लूकोज वाला तो कॉपी पे भी क्वेश्चन किया हुआ है। हाँ, ग्लूकोज वाला कॉपी पे भी किया हुआ है। अब जैसे कि अब इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि ग्लूकोज कौन से फ्रूट्स में होती है? ग्लूकोज, ग्रेप्स, ऑल स्वीट फ्रूट्स। जितने भी स्वीट ओके मैम। फ्रूट्स हैं उनमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होगी। ठीक है, जितने फ्रूट्स मीठे हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की ये प्रॉपर्टी है कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये मीठे होते हैं। ऑलराइट, तो जितने भी स्वीट फ्रूट्स होंगे उनमें, चाहे ग्रेप्स हैं, चाहे मैम ये उसमें जो फ्रूटोज है एप्पल है। मैम, ये भी स्वीट फ्रूट्स ही है। जी। मैम ये जो फ्रूटोज है, हम्म। ये भी स्वीट फ्रूट्स ही है। फ्रुक्टोज इज बेसिकली अ सिंपल शुगर। आपके पास ये दो ऐसे टाइप्स ऑफ शुगर्स हैं जो सिंपलेस्ट हैं। इससे मजीद सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल्स हैं, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ठीक है, अब ये चीज, फिर ये पॉइंट कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपाउंड्स which have carbon, hydrogen and oxygen. This is an important point. ठीक है, it has carbon, hydrogen and oxygen. Now, simple carbohydrates versus complex carbohydrates. Simple carbohydrates are sugary, they contain sugar, all right, and for example, they raise blood sugar, they digest faster, they give short term energy to you, and they taste sweet. On the other hand, complex carbohydrates have more fiber in them, they digest slowly, ऑल राइट, दे गिव कंसिस्टेंट एनर्जी। अच्छा, अब बॉयज इसमें एक चीज जो इम्पोर्टेंट और भी है वो है फाइबर। अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है जी, फाइबर डाइजेस्ट होता है या नहीं होता? इसका आंसर है कि फाइबर डाइजेस्ट नहीं होता। फाइबर सिर्फ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करता है ताकि बाकी फूड जो है आपकी एलिमेंट्री कैनाल में वो इजीली मूव करे। ठीक है, सो फाइबर इज नॉट डाइजेस्टेड इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम इटसेल्फ। ऑलराइट, फाइबर की एग्जांपल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जितने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फॉर एग्जांपल सीरियल्स, फॉर एग्जांपल व्हीट, फॉर एग्जांपल ब्रेड, फॉर एग्जांपल बीन्स, फॉर एग्जांपल डिफरेंट फ्रूट्स, all of these things they contain fiber in them. अब एक और चीज, these are a few things जो
मुझे लगता है कि आप लोगों को नहीं आती होंगी, या जो मैं आपको बता रही हूँ। अब मैम ये फाइबर्स वाले मैंने अगर नोट्स बनाए आपकी हुए हैं इन बॉडी चीजों के। में, जी, इन चीजों के मैम हमने नोट्स बनाए हुए हैं मैंने सारे। अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज, फाइबर की डेफिशिएंसी, अगर बॉडी में फाइबर की डेफिशिएंसी हो तो जो बीमारी होती है उसको कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। बीमारी तो नहीं है, ये एक कंडीशन है, कॉन्स्टिपेशन। ऑलराइट, फाइबर डेफिशिएंसी से होती है कॉन्स्टिपेशन। ये आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिपेशन क्या होती है और किस तरह से होती है। ऑलराइट, देन फाइबर डेफिशिएंसी से होगी कॉन्स्टिपेशन। ठीक है जी। इसके बाद गुड कार्ब्स और बैड कार्ब्स। गुड कार्ब्स, दे मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं गुड कार्ब्स जो कॉम्प्लेक्स हैं। और जो बैड कार्ब्स हैं ये इंक्रीज करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल को। ठीक है। मैम वो एक बात पूछनी थी। मैम ये जो हमारे गुड फैट्स हैं, बैड फैट्स हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स हैं और सैचुरेटेड फैट्स हैं, हम्म। मैम हम इनको एक ही करके लिख सकते हैं, मतलब अनसैचुरेटेड को गुड फैट्स में और सैचुरेटेड को बैड फैट्स में। नहीं, यहाँ पे अभी मैं गुड कार्ब्स और बैड कार्ब्स की बात कर रही थी, मैंने फैट्स की नहीं की बात। फैट्स की भी करनी है। ठीक है। ओके। ये गुड कार्ब्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्ब स्टैंड्स फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। एक और चीज है बॉयज, कि प्लीज पेपर में एब्रीविएशंस मत लिखिएगा, फुल क्या मतलब फॉर्म्स मैम? लिखिएगा। ठीक है जी। इसके बाद प्रोटीन्स, अब फिर वही बात है कि प्रोटीन्स किन क्या चीजों में मतलब? होती है। क्या मतलब? क्या? मैम क्या मतलब? एब्रीवेशन क्या आना देना? मतलब जैसे एब्रीवेशन क्या आना कार्बोहाइड्रेट्स देना? को मैं हमने कार्ब्स लिख दिया, ठीक है, एब्रीविएशन ये ओके। होती है। ठीक है, ओके। शॉर्ट फॉर्म्स में नहीं लिखना, फुल फॉर्म लिखनी है चीजों को। ऑलराइट। इसके बाद व्हाट आर प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स के अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है। ठीक है, प्रोटीन्स में नाइट्रोजन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में नाइट्रोजन नहीं होता। ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो मैं बता रही हूँ, प्लीज इसको मेंशन रखें अपने पास। और जब प्रोटीन्स ब्रेक डाउन करते हैं देन दे कन्वर्ट इनटू अमीनो एसिड्स। ऑलराइट, proteins break down to convert into amino acids. अच्छा, इधर एक और चीज है, when carbohydrates break they break because of enzymes। प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जितनी भी ये न्यूट्रिएंट्स हैं, जब ये ब्रेक करेंगे तो ये एंजाइम्स से ब्रेक करेंगे। अब ये कहाँ ब्रेक करते हैं और कौन से एंजाइम्स इन्हें ब्रेक करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए दो एंजाइम्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स पे जरा आ जाते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक दो किस्म के एंजाइम्स करते हैं। नंबर वन एंजाइम की इज, डेफिनेशन क्या थी? enzyme is a chemical which basically helps in break down food. Ma'am, can you write it in message area? Enzyme is a chemical which helps in conducting a chemical reaction। ये बुक में लिखा हुआ है वैसे। All right. Now, next, I was talking about, हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कौन से एंजाइम्स होते हैं। दो एंजाइम्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। नंबर वन, नंबर वन इज एमाइलेज
एंजाइम। अब ये जो एमाइलेज एंजाइम है ये दो जगह सिक्रीट होता है, एक माउथ में एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैम ये एमिलाइज है क्या चीज? एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करता है। माउथ में स्लाइवा जो थूक होती है आपकी, इसके अंदर ये एंजाइम होता है एमाइलेज, ठीक है। और ये एंजाइम माउथ से, अब ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा या आ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन स्टार्ट किधर होती है, तो इसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट माउथ में होती है और एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है। एमाइलेज एक एंजाइम एमाइलेज है, दूसरा एंजाइम इसका है कार्बोहाइड्रेजेस या कार्बोहाइड्रेज। ये दो एंजाइम्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। क्या मतलब मैम? मैम मैम ये कार्बोहाइड्रेट्स ये मैसेज में लिख दें। मैंने मैसेज में ये लिखती जा रही हूँ साथ साथ, अगर आप देखें। मैम ने लिख दिया है। क्या मतलब का क्या मतलब है? फिलहाल आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि दो एंजाइम्स होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। एक है एमाइलेज, एक दूसरा है कार्बोहाइड्रेट्स। हु इज दिस क्रेटोस गेमिंग? ठीक है, एमाइलेज है, कार्बोहाइड्रेट्स है, बोथ ऑफ दीज दे ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स and they start breaking down the carbohydrates in mouth, and the digestion of carbohydrates end in small intestine. Boys, कार्बोहाइड्रेट्स की या किसी भी न्यूट्रिएंट की डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके खत्म हो जाएगी। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लास्ट पॉइंट ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल जहां पे डाइजेशन होती है। बस स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होती, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होती मैम है। वहाँ पे एलिमिनेशन होती है। जी मैम वहाँ पे तो सिर्फ एलिमिनेशन होती है तो। हाँ जी, लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ फूड्स को, जो डाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल्स हैं उन्हें एक्यूमुलेट करता है, पहले इकट्ठा करता है और उसके बाद फिर इजेशन हो जाती है आपकी बॉडी से, एलिमिनेशन हो जाती है, ठीक है। ओके, देन द सेकंड थिंग वाज अबाउट प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो हैं, these are again you will memorize different examples of proteins, कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजें हमें प्रोटीन्स देती हैं, ठीक है। प्रोटीन्स की जो डेफिशिएंसी है या एक्सेस है उससे कैशवायर डिजीज होती है। देन व्हाट आर फैट्स? Fats are compounds, and sources of fats include eggs, dairy products, meat, fish, nuts, oils, olives, avocados. Avocados are type of vegetables and fruit. वैसे fruit है avocado. अब यहाँ पे हमारे पास बात आ गई है गुड फैट्स एंड बैड फैट्स की, ठीक है। गुड फैट्स आर unsaturated fats. All right, unsaturated fats are good fats and saturated fats are bad fats. All right, and the difference between both is this, that good fats, they are basically the fats which are present in natural things. For मैम ये example, वाला मैम fish. सेंटेंस आप लिखते हैं मैम, ये बहुत जरूरी है। क्या चीज? मैम ये फैट्स वाले मैम लिखते हैं हम मैसेज में। क्या
Good fats and bad fats. Yes, ma'am. Good fats are unsaturated fats. And they are present in natural things. Yes, and they are present in natural foods such as fish, vegetable oils, dry fruits. ठीक है? Then bad fats, these are saturated fats. ठीक है? ये bad fats जो हैं ये saturated fats हैं and they are all artificial or man-made fats such as cheese, butter, margarine, Mama roti. all right? Artificial or man-made fats such as cheese, butter, margarine, etc. All right, so artificial fats ये होते हैं, bad fats होते हैं. Now कोकोनट ऑयल भी बैड फैट्स में ही आता है. ठीक है. डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड फैट्स भी आ सकता है पेपर में. ज़्यादातर सोर्सेज भी आ सकती हैं गुड फैट्स की, बैड फैट्स की, तो इसकी सोर्सेज याद कर लीजिएगा. ठीक है, गुड फैट्स की एंड बैड फैट्स की. अच्छा हाँ, अब हम आर डाइजेस्टेड प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड बाय प्रोटीन डाइजेशन टेक्स प्लेस. प्रोटीन डाइजेशन अब मैं लिख रही हूँ. प्रोटीन डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्टोमिक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, सिर्फ स्टोमिक और स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है प्रोटीन की डाइजेशन, और स्टोमिक में सिर्फ प्रोटीन्स की डाइजेशन होती है. प्रोटीन्स के अलावा और किसी चीज की डाइजेशन नहीं होती स्टोमिक में. ठीक है, स्टोमिक में कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन नहीं होती, फैट्स की डाइजेशन नहीं होती, जस्ट प्रोटीन्स की डाइजेशन होती है. एंड देयर आर टू एंजाइम्स, पेप्सिन इन स्टोमिक, ठीक है, एंड ट्रिप्सिन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. ये दो एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन डाइजेशन करते हैं. पेप्सिन प्रोटीन डाइजेशन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. ठीक है, एंड ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेशन करता है, सॉरी, पेप्सिन प्रोटीन डाइजेशन करता है स्टोमिक में एंड ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेशन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. अच्छा, अब दूसरी चीज ये कि ये दोनों एंजाइम्स जो हैं दे आर प्रोड्यूस्ड बाय पेनक्रियाज. ठीक है, पेनक्रियाज produces these enzymes. ठीक है, and these enzymes are uh, you can say they are secreted in small intestine by secretion of pancreatic juice in the form of pancreatic juice. All right, now so protein digestion. अच्छा, इसके बाद लिपिड्स या फैट्स की डाइजेशन. लिपिड और फैट की जो डाइजेशन है ये होती है बाय मैम ये जो बाइल. पैंक्रियाज है मैम, ये मतलब सारे एंजाइम्स को बनाता है? नहीं, सिर्फ प्रोटीन, ट्रिप्सिन और पेप्सिन को. अच्छा, बाइल कंटेन
बाइल एक वो है, क्या कहते हैं उसको, एक डाइजेस्टिव जूस है. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर एंड सिक्रीटेड. सिक्रीटेड का मतलब है छिड़कना, ठीक है. तो इट्स सिक्रीटेड बाय gall bladder. All right, bile. And bile contains lipase enzyme, ठीक है, and digest fat. मैम ये जो पैंक्रियाज ये मतलब मैम पैंक्रियाटिक जूस भी प्रोड्यूस करता है. मैम इट इज गॉल ब्लैडर की और ग्लैड ब्लैडर. मैम Gall bladder. पैंक्रियाज का दोबारा बताना. Alright, bile. अब ये भी बहुत important है that bile is produced by the liver and it is secreted by gallbladder. This can come in your MCQs. Alright. Then bile contains lipase enzymes and digest fats. अब ये fats की digestion कहाँ हो रही है? Small intestine में, ठीक है. अब यहाँ पे 3 डाइजेशन हैं. सबसे पहले मैम डाइजेशन स्टार्ट पैंक्रियाज होती का है दोबारा बताना. कार्बोहाइड्रेट्स की माउथ में, ठीक है. एंजाइम जो माउथ में डाइजेशन स्टार्ट करता है वो है एमाइलेज, और स्लाइवा में होता है ये, ठीक है. फिर ऑसोफेगस से फूड नीचे जाता है. ऑसोफेगस में स्पेसिफिक टाइप की मूवमेंट्स होती हैं, उस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टालसिस, ठीक है. पेरिस्टालसिस आर द मूवमेंट्स इन ऑसोफेगस by which food is pushed down, ठीक है, pushed down to stomach. मैम द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालसिस इज पेरिस्लिक. Peristalsis is not a process, it's a movement मैम of a. हमें पैंक्रियाज का तो दोबारा समझा दें. क्या समझाना है अरे ये पेंक्रियास का? पैंक्रियाटिक जूस लिपिड और फैट डाइजेशन. पेंक्रियाटिक जूस नहीं करता फैट डाइजेशन. फैट डाइजेशन बाइल करता है. बाइल लिख तो रही हूं मैं साथ साथ, आप चैट बॉक्स नहीं देख रहे. Bile is produced by the liver and secreted by gallbladder, and it contains the enzyme lipase, and it digests fats. Pancreatic juice contain pepsin and trypsin. Pepsin is secreted in stomach and trypsin is secreted in small intestine. दोनों का काम प्रोटीन डाइजेशन है. स्टोमिक के अंदर सिर्फ प्रोटीन्स की डाइजेशन होती है. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स तीनों की डाइजेशन होती है. और माउथ में भी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होती है, ठीक है. सो डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ. माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होती है और सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होती है. माउथ में 2 किस्म की डाइजेशन होती हैं, एक मैकेनिकल और दूसरी केमिकल. मैकेनिकल डाइजेशन मतलब आप जो दांतों से चबा रहे हैं, च्यूइंग कर रहे हैं, दांतों से आप च्यू करते हैं, फूड को ग्राइंड करते हैं, क्रश करते हैं, साथ आपके मुंह में स्लाइवा उसके साथ मिक्स होता है, जो केमिकल डाइजेशन करता है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम. आप Yes, कोई और ma'am. क्वेश्चन है तो पूछ लें. आई डोंट थिंक. No, ma'am. अच्छा No, हाँ, ma'am. एक चीज which I want to share with you is this. Structure of teeth. Structure of teeth. This diagram. ये सबसे ऊपर आपके पास इंसाइजर्स हैं, ठीक है.
First four teeth are incisors. अपर जॉ और लोअर जॉ इट्स द सेम, ऐसा ही उसका होता है, मतलब पैटर्न जो है वो सेम है। ठीक है। इसके एनसाइजर्स के पहले चार दांत जो आपके एनसाइजर्स हैं, एनसाइजर चीजल शेप टीथ होते हैं, ये बुक में मेंशन्ड है। ठीक है। ये वाली डायाग्राम बुक में नहीं है, ये वाली डायाग्राम बुक में है, एनेमल डेंटाइन पल्प वाली। ठीक है। क्राउन और रूट बना हुआ है उसमें, लेकिन ये वाली नहीं है, डायाग्राम नहीं है, उन्होंने सिर्फ स्पेसिफिकली अलग अलग दांत बना के दिखाए हुए हैं बुक के अंदर। ठीक है। सबसे फर्स्ट फोर टीथ जो है वो इंसाइजर्स होते हैं, उसके बाद दो कैनाइन्स हैं, एक साइड पे एक दूसरी साइड पे। ठीक है। कैनाइन्स के बाद दो प्रीमोलर्स हैं और 3 से 4 मोलर्स हैं। ठीक है। ये जॉ लाइन आपको मैम ये जो दो प्रीमोलर्स है मैम, दोनों साइडों पे दो दो। क्या? मैम ये जो प्रीमोलर्स है, हम्म। ये दोनों साइडों पे दो दो। जी जी, दो साइड पे, ये इस साइड पे दो हैं, इस साइड पे भी दो हैं। मैम ठीक है। मैम what is mean by wisdom teeth? विजडम टूथ इज अ टाइप ऑफ मोलर टीथ। ठीक है। एक मोलर टीथ होता है जो एक स्पेसिफिक एज के बाद ग्रो करता है, उसे विजडम टीथ कहते हैं। मैम उसकी स्पेसिफिक एज क्या होती है? उसकी स्पेसिफिक एज होती है आफ्टर 18 ईयर्स ग्रो कर सकता है किसी भी टाइम, बट इसकी कोई स्पेसिफिक एज नहीं होती। कुछ लोगों का करता है, कुछ का नहीं भी करता, पूरी पूरी लाइफ ग्रो विजडम टीथ। तो दिस कैन, उसी के अंदर मैम विजडम आता होगा। हाँ, वो इसी वजह से कहते हैं ना भी, अकल अगर किसी के अंदर आती है तो विजडम टीथ, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज विजडम टूथ। मींस इट इज इट you can say it comes up after maturity. ठीक है। so this is it. अब ये सारी चीजें आपने याद करनी है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। Okay, ma'am. ऑल राइट। Yes, ma'am.